Good morning, Lakshmanites. I'm your dance teacher Anuradha ma'am. Today, I'm happy to reconnect with you all. Hope you all are taking good care of yourself. I'm looking forward to seeing all your beautiful smiles and energy back in my class very soon. Joy, sound, synchro, expressions, lines, patterns, rhythm, and movements are the key for innovation of dance. By simple definition, the movement of the body in the rhythmic way, usually to music and within a given space, for the purpose of expressing an idea or emotions, releasing energy, for simply taking delight in the movement itself is dance. There are a number of dance forms around the world, and in our country, India has so many folk dances, contemporary dances, and 8 very famous classical dance forms. One of the 8 classical dance forms is Kathak. Let's begin to understand this dance form better. Kathak is one of the 8 major forms of Indian classical dance. भारतीय नृत्य शैलियों में से कथक नृत्य बहुत महत्वपूर्ण नृत्य विधा है. The term Kathak is derived from the Vedic Sanskrit word katha, which means story, and kathakar, which means the one who tells a story or to do with stories. कथक शब्द की उत्पत्ति 2 वैदिक संस्कृत शब्दों से मिलकर हुई है. वो है कथा यानी स्टोरी और कथाकार यानी कथावाचक या स्टोरी कहने वाला. Kathak dancers tell various stories through their hand movements and extensive footwork, but most importantly through their facial expressions. कथक नृत्य में हस्त मुद्राओं और पद संचालन द्वारा कहानियों और कथाओं को प्रस्तुत किया जाता रहा है, पर सबसे ज्यादा अंग भाव की अधिकता व महत्ता होती है. कथक evolved during the Bhakti movement, particularly by incorporating the childhood and stories of the Hindu god Krishna, as well as independently in the courts of North Indian kingdoms. कथक की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय हुई, जिसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की लीलाओं को दर्शाया जाता है. यह नृत्य शैली उत्तर भारत की शैली है. ताल in Kathak. Today we will discuss 2 tals. ताल 3 ताल 16 मात्रा and ताल दादरा 6 मात्रा. ताल 3 ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध तालों में से एक है. इस ताल में 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं और इस ताल में 1, 5 और 13वीं मात्रा पर ताली लगती है और 9वीं मात्रा खाली होती है. यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो तबले की थाप पर आप ताल सुन रहे हैं, यह भी 3 ताल ही बजाई गई है. भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य शैली में सर्वाधिक प्रचलित ताल 3 ताल है.
ताल दादरा, इसमें 6 मात्राएं होती हैं और 2 विभाग होते हैं। इस ताल में पहली मात्रा पर ताली लगती है और चौथी मात्रा खाली होती है। यह ताल भजन गीत व लोक गीत में ज्यादा प्रयोग में आती है। Pioneers of dance. Children, today we will talk about Pandit Birju Maharaj Ji, who is very well known artist and Nritya Guru. Brij Mohan Mishra, popularly known as Pandit Birju Maharaj Ji, बहुत प्रसिद्ध और गुणी कलाकार पंडित बिरजू महाराज जी का पूरा नाम ब्रिज मोहन मिश्रा है। He was born on 4th February 1938. इनका जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ। An exponent of the हांडिया, रिखीपुर, इलाहाबाद कालका बिंदादीन घराना of कथक डांस इन इंडिया। ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि हैं। ताल और घुंघरुओं के तालमेल के साथ नृत्य पेश करना एक आम बात है, लेकिन जब ताल की थापों और घुंघरुओं की रुनझुन को महाराज के माधुर्य में बदल देने की बात हो तो बिरजू महाराज जी के अतिरिक्त और कोई नाम ध्यान में नहीं आता। इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है। बिरजू महाराज जी was born in the house of Kathak exponent. Jagannath Maharaj, popularly known as Achan Maharaj of Lucknow Gharana. Birju Maharaj Ji was awarded a Padma Vibhushan in 1986. Birju Maharaj Ji was trained by his uncles Lachu Maharaj Ji and Shambhu Maharaj Ji and his father. Birju Maharaj Ji gave his first recital at the age of 7. On 20th May 1947, his father died when he was 9. Children, now we will start our practical dancing lesson. I am sending you a YouTube link. In this link, we will see how you can tie your ghungroos and how we will start our dancing practice with pranam or bhumi pujan. नमस्कार, कथक की पाठशाला में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आज मैं आपको घुंघरू बांधना सिखा रही हूँ। कथक में घुंघरू बांधने का बड़ा महत्व माना जाता है। घुंघरू कैसे बांधना चाहिए, मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम आप डोरी को लीजिए और अपने टो के साथ में उसको राउंड अप कीजिए। आहिस्ता से पैर को उठाते हुए घुंघरू को एक के ऊपर एक गोलाकार रूप में स्थापित करते चाहिए। स्थापित करते समय उसको चारों तरफ से प्रेस करके सेट करते जाइए, क्योंकि हमारे कथक में घुंघरू का बड़ा महत्व माना गया है। इसे कैसे पहना जाता है और ये कैसे दिखना चाहिए, इसलिए मैं सर्वप्रथम आपको घुंघरू बांधना सिखा रही हूँ।
उसके बाद डोरी को निकालिए। डोरी को टाइट करते हुए ऊपर की साइड दोनों डोरी को क्रिस क्रॉस करते हुए साइड में बांध लीजिए। बांधने के बाद जो आपकी डोरी बची है उसे अंदर की डोरी के साथ टाई अप कर दीजिए और आपके घुंघरू की पोजीशन इस प्रकार से होनी चाहिए जो देखने में सुंदर लगे और अच्छा साउंड करे। मैं प्रणाम की प्रक्रिया आपको बताने जा रही हूँ। नृत्य आरंभ करने से पहले समस्त गुणीजनों, गुरुजनों, दसों दिशाओं, दर्शकों और भूमि को प्रणाम किया जाता है। उनसे स्वीकृति लेके अपनी नृत्य आराधना आरंभ की जाती है। उसे प्रणाम या भूमि प्रणाम कहा जाता है। सो उसी का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दे रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसी प्रक्रिया को मैं अपने स्टूडेंट के साथ में बताना चाहूँगी। तानिया मंडली, गौतम राज, विधि सोनी, आप तीनों नाटक में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। इन्हीं के साथ में आज आपको प्रणाम की एक समूह प्रक्रिया बता रही हूँ कि भूमि प्रणाम या प्रणाम कैसे होना चाहिए। Shall we? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसे प्रणाम की प्रक्रिया कहा जाता है। ये नृत्य आरंभ करने से पहले की जाती है और ये करना मतलब स्वीकृति लेना होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है कथक का या किसी भी नृत्य विधा का मुख्य भाग माना जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के अपडेट लेने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Until then, please keep dancing. Namaskar.